थैंक यू सो मच मैम। इतनी क्रिस्प वे में आयुर्वेद का पूरा परिप्रेक्ष्य में कोविड 19 को रखना इतने कम समय में, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके प्रेजेंटेशन के बाद मुझे एक सूत्र याद आ रहा है जो कहता है कि हिताहारी स्वस्थ रहने का एक 3 शब्दों में है कि हिताहार हो, रिताहार हो, मिताहार हो। यानी कि हिताहार की जो खाना चाहिए वो खाना है, जो नहीं खाना है उसे ना खाना। तो हित आहार करना। दूसरा है ऋताहार, यानी ऋतु के अनुसार भोजन करना, जो खाना चाहिए उस समय के अनुसार वो खाना। इन शॉर्ट, आपने इन सब चीजों को टच किया। और तीसरा है मिताहार, यानी कि कम खाना, जितनी भूख है उससे कम खाना। इसीलिए 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स हमें कहा गया है कि अपनी हिसाब से उदर का करने के लिए, और अपनी भूख से थोड़ा कम खाने के लिए कहा, यानी कि अति सौहत, यानी पूरा पेट भरकर खा लेना एक बार मील में, आयुर्वेद में ये मना किया है। तो थैंक यू मैम, इस तीनों चीजों को, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की इस एस्पेक्ट पर इम्पोर्टेंस देने के लिए। हम और डिटेल्स में आहार के बारे में, योग के बारे में अभी जानेंगे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और वैद्य मानस रंजन होता जी हमारे साथ हैं। आप सर प्रिंसिपल हैं भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और फाउंडर हैं आयुर्वेद तंत्रम SS आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में। और आज आपका व्याख्यान सर है मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19 इन आयुर्वेद। तो वायरस के बारे में जान लिया हमने हमने उसके बेसिक आयुर्वेद कॉन्सेप्ट्स हमने जान लिए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं सर, मैनेजमेंट कैसे हो कोविड 19 का। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप सभी टच करके उसे देख सकते हैं। हाँ। बोला। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। सर हमें आयुर्वेद में कोविड 19 के उपचार यानी मैनेजमेंट के बारे में बताइए।
Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Hello? You're audible. Technical information. So I will take the subject through audio only. Am I visible to everyone? Okay. No, sir, you're not visible to everyone. And meanwhile, I want to You're request everyone else to Visible, please sir. You switch are off visible. their Your mics. slide is visible quite and you are audible quite. Sir, your Slide slide is visible. visible now. Yes. Yes, sir, it is visible now. You're audible, sir. Slide भी visible है. बाकी सभी से request है कि please unmute कर दीजिए. My slide is visible now. Yes, sir. Yes, sir. It is visible, sir. Okay. So thank you, Dr. Garima, and the team for inviting us. Take this method of in Ayurveda, and most of my work, half of my work has been done by Dr. Saurabh and Dr. Sanghamitra. Ayurveda and COVID-19, as we have discussed, that in Ayurveda there is no mention of the term COVID-19, and Dr. Saurabh had precisely and in detail all aspects of COVID-19. Someone must know. Excuse me, sir. Or- Sir, your voice is breaking. Okay, am I audible now? Am I audible clearly now? No, sir, there is echo in your voice. Okay, now is it audible without echo? It's better, sir. Okay, okay. It is better, sir. Okay, Yes, sir. let's start. So we know that COVID-19 is not described in Ayurveda, definitely, because this is a new disease which started in 2019 only. But what are the concepts that we can deal COVID-19? Let me make clear to the listeners that Ayurveda is a principle-based science. Though the name of COVID-19 is not there, but a lot of things described in detail through which we can understand the causative factor, the pathogenesis, and can decide the management protocol of this pandemic situation. Dr. Sanghamitra and Dr. Saurabh has already, I will not take much of time, but just the points. This is a disease which comes under the group of Upasargika Roga. Upasargika Roga means the disease transmit from person. This is evident. Second, it is a Janapada Dhvansha Roga, that is which affects a larger population at the same time. So this has been a pandemic, so we know that this is a Janapada Dhvansha Roga. Third, in Ayurveda, the principle of understanding of Anukta Vyadhi. Anukta Vyadhi means the disease about which
the name is not there, but the understanding of the pathogenesis and deciding treatment protocols have been very detailed described. So by seeing the sign and symptoms of the disease, a Vaidya decides 3 factors. What are the elements which are responsible for the production of the disease, and what are the tissue elements and what are the systems that is being involved in that particular pathological condition, and how the particular condition starts from the initiation to the till date, how it progresses. If we understand these 3 factors, then we can decide the nomenclature, we can know about the disease, the pathogenesis, and later on, accordingly, we can manage. I am seeing a message that I should speak in Hindi. Okay. तो 3 फैक्टर है जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान कहते हैं। उसको अगर हम निर्धारण कर पाएंगे तो कोई भी बीमारी, आज से पहले जितने बीमारी हुए हैं और आज के बाद आने वाले समय में जितने बीमारियां होंगे, सबको हम समझ पाएंगे और उसका चिकित्सा निर्धारण कर पाएंगे। अब हम कोविड-19 में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा पार्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है। तो कोविड-19 में हम देख रहे हैं कि इन इंडिया द मोर्टेलिटी रेट इज अराउंड 1.12। इसका मतलब लगभग 1%, 91% लोग हॉस्पिटल से Sir, sorry to disturb you, sir. Sir, Yes. sorry to disturb you. Sir, slide is not visible, sir. We are not able to see the slides. So no slides is being visible. No, sir, it is blank, sir. Okay. Though we can hear your voice, but slide is not visible on the screen. Is this visible now? Yes, sir. Yes, sir, it's visible now. So Thank the you, sir. mortality rate, हाँ, मृत्यु दर जो है वो लगभग 1% है इंडिया में। हमारा एक सिचुएशन बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का लगभग 3% है। हॉस्पिटलाइजेशन, ये जितने सारे लोग अगर बीमार कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 10 से 15%, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है, तो उनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग ही हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और जितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनमें से 28% लोग ही मैकेनिकल वेंटिलेशन का आवश्यकता पड़ रहा है। तो इससे एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि लगभग 85 to 90% लोग जो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वो घर में आइदर एसिम्टोमेटिक या फिर माइल्डली सिम्टोमेटिक, मॉडरेटली सिम्टोमेटिक होके जो भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जो भी उनको मिल रहा है, उससे वो ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ तो है जिसके कारण कुछ लोग ही बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोग ही मर रहे हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए ये कहा गया है कि कोई भी बीमारी तब तक एक आदमी को नहीं हो सकता जब तक उसके शरीर के अंदर पहले से मल, मतलब इंप्यूरिटीज न हो। ये एक प्राइमरी कंडीशन है किसी भी बीमारी से ग्रस्त होने का, ना सिर्फ कोरोना, ईच एंड एवरी डिसीज यू नेम इट अंडर द सन। उसके लिए ये जरूरी है कि उसके शरीर के अंदर पहले से मल दोष विद्यमान होना चाहिए।
दूसरा चीज है अबलम। अबलम मतलब लेस इम्यूनिटी, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, डिक्रीज इम्यूनिटी, रोग के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है उसकी कमी होना जरूरी है। थर्ड, रजोपरितम मतलब उसकी मानसिक अवस्था में भी थोड़ा सा वैगुण्य, रज गुण से वो ग्रसित होना जरूरी है। और क्योंकि ये एक हमने बताया, ये तीन चीज मैं बता रहा हूं औपसर्गिक रोग के कारण के रूप में, संहिताओं में क्लियरली डिस्क्राइब्ड है ये। और जनपद ध्वंस में वो कह रहे हैं कि अधर्म होना जरूरी है। और समझेंगे ये अधर्म क्या है। और भूतादिसंग या आगंतुक कारण, बाहर से कोई शरीर के अंदर घुस जाए तो भी हमें बीमारी हो सकता है। लेकिन इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है भूतादिसंग या आगंतुक, क्योंकि हम जानते हैं ये वायरल डिसीज है, वायरस अंदर आता है और उसके बाद कोविड-19 होता है। लेकिन आयुर्वेद ने सबसे पहले ऊपर की चीजों को रखा है। वायरस के लिए एंटीवायरल प्रिपरेशंस देना ये आयुर्वेद में इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, डेफिनेटली देयर इज प्रोटोकॉल, देयर इज सिस्टम, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके शरीर में मलदोष होना चाहिए, उसमें इम्यूनिटी कम होना चाहिए, मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ होना चाहिए और जनपद ध्वंस होने के लिए अधर्म की स्थिति होना चाहिए। अब अधर्म को भी हम समझेंगे, ये कोई ये एक साइंटिफिक डिस्कोर्स है, तो अधर्म कोई किसी धर्म से इसका लेना देना डेफिनेटली नहीं है। तो हम थोड़ा समझेंगे कि इनमें से जो मैंने अभी बताया, ये मल दोष जिसको हमने सबसे पहले ऊपर रखा है, ये मल दोष हमारे शरीर में आता कैसे? हमारे शरीर में मल दोष हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि वी आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन एवर इन्वेंटेड अंडर द सन। विश्व में सबसे उम्दा मशीन अगर कोई है तो वो ह्यूमन मशीन है। और इस मशीन को 100 साल ये बिना खराब हुए चल सके उसलिए बनाया गया है। वो कब तक 100 साल तक बिना खराब हुए चल सकता है? अगर उसमें निरंतर रूप से आने वाले जो मल है उसको अगर हम हटा सकें। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो मल हमारे शरीर में आता कैसे है। सबसे पहले डेली एक्टिविटीज से, सुबह उठने के बाद रात के सोने तक और फिर सुबह उठने तक, जो दिन भर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारे वृत्ति में काम लगे रहते हैं, हमारे प्रोफेशन में लगे रहते हैं, उससे डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक मल हमारे शरीर में पैदा होते रहते हैं। दूसरा आता है सीजनल इफेक्ट्स, जो ऋतु चेंजेस, सीजनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी शीत, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, ये सारे जो गुण हैं विभिन्न ऋतुओं के, इसके प्रभाव से भी हमारे शरीर में मल जमा होता रहता है। तीसरा, इंपल्स जनरेटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल्कुल चुप हैं, या फिर थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन कैसे कहना है नहीं पता। हो सकता है 50 साल 100 साल के बाद रिसर्च के जरिए ये एकदम क्लियर होकर के आए। इसको इम्पल्स, ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, लेकिन इसको कहते हैं वेग। तो इम्पल्स जनरेटेड इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर में जमा होता रहता है। इम्पल्स जनरेटेड मतलब यहाँ मैं मेनली बात कर रहा हूँ मेंटल इम्पल्सेस, मेंटल नेगेटिव इम्पल्सेस, गुस्सा हो जाना, लोभ होना, दुख करके वो है क्रोध, लोभ एवं शोक। ये तीन इम्पल्स का अगर हो ही जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो उसमें आ ही जाता है। लेकिन आने से शरीर में ये मल पैदा करता है और वो मल जमा हो जाता है अगर वो ना निकल पाए। उपाय के बारे में बात करेंगे। ओल्ड एज के कारण, वार्धक्य के कारण ऑटोमेटिकली, क्योंकि धातु का क्षय होता है और स्वाभाविक रूप से शरीर में मल पैदा होता रहता है। मॉर्बिडिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कन्वेंशनल वैज्ञानिक लोग बहुत बात कर रहे हैं कि कोमॉर्बिड जो कोमॉर्बिड रोगी हैं वो लोग ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं, उनका फर्टिलिटी ज़्यादा है, उनका मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो वैसे
ये जो दूसरे डिसीज अगर आप में विद्यमान हो तो उसका भी एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ मल होता रहता है। नेक्स्ट इज टॉक्सिन्स, क्योंकि आजकल जो हम आहार विहार कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, हमारे जो खा रहे हैं खाना उसमें भी पेस्टिसाइड्स है, और हम जो प्रिजर्वेटिव्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, उसका भी रेगुलर सेवन हमारे शरीर में होता रहता है। एंड लास्ट कॉज इज जनोपद ध्वंस। जनोपद ध्वंस के बारे में बहुत अच्छे से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि वायु जल देश काल बिगड़ने से कैसे जनोपद ध्वंस होता है। तो ये सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे शरीर में मल बनता रहता है। तो इस मल को अगर हम निकाल दें तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम जो चिकित्सा है, क्योंकि मेरा टॉपिक मैनेजमेंट के बारे में है, तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आयु के एस्पेक्ट, क्योंकि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयु के एस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये लेमैन के लिए है। इसीलिए मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक कुछ प्रिंसिपल्स, हार्डकोर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स भी लोगों को बारे में पता चले, लोगों को इस बारे में पता चले, ताकि उनको समझ में आए कि आयुर्वेद कितना वैज्ञानिक है। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद दो शब्द से बना है, एक आयु है और दूसरा वेद है। वेद मतलब नॉलेज सिस्टम, और आयु एक संस्कृत शब्द है और एक वैज्ञानिक शब्द है, एक साइंटिफिक वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड है। तो आयु एक क्रिया है। Sorry to disturb you once again, sir. हाँ, Hello. Yes. I'm really sorry to disturb you, sir. Someone else has shared his screen. So I request कि आप जो किसी और ने मिस्टर परशुराम सतपति आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया, आप प्लीज स्टॉप शेयर करिए ताकि हमें सर की स्लाइड्स दिखाई दे सकें। सर आपको शायद वापस शेयर करना पड़ेगा। okay, And I request all the participants not to do such things. अपना माइक अनम्यूट रखिए, स्क्रीन और कैमरा ऑफ रखिए, शेयर स्क्रीन नहीं करिए आप प्लीज। आपको वापस गूगल मीट में आकर स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। मीटिंग में आइए आप और स्टॉप शेयरिंग करिए परशुराम जी। हाँ, आप प्लीज वापस स्टॉप शेयरिंग आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। सर मानस सर आप प्लीज अपना वापस आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन। okay, okay, okay. I'm really sorry to disturb you, sir. Okay, no problem, no problem. It's fine, it's okay. So now it is visible. No, sir, it's not visible yet. सर आपको फिर से शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा सर। नहीं आ गया, सॉरी वो आ गया था, सर का स्क्रीन आ गया था। ओके ओके, डॉक्टर मानस आप। हाँ जी सर, यस सर, अभी आएगा सर। Visible, sir. यस सर, इट इज विजिबल नाउ। यस सर। ओके। सो तो मैं ये बता रहा था कि आयु एक प्रक्रिया है और उसका विज्ञान या नॉलेज सिस्टम को हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ये प्रक्रिया के बारे में मैं इन नॉटसेल बताना चाहूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आयु एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें 4 प्रक्रिया निरंतर चलते रहते हैं। उसको धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध हम कहते हैं। ये बड़ा टेक्निकल शब्द है, इसको मैं बहुत सहज भाषा में आपको समझाता हूँ। हम क्योंकि मनुष्य हैं और एक ऐसा मशीन जैसे बताया कि जो 100 साल तक चले, तो ये मशीन इसके लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? ये ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं एनवायरमेंट से, बाहर से, ब्रह्मांड से। और ये ऊर्जा को, ये मशीन ऐसा होना चाहिए कि वो उसको धारण कर सके, रख सके। ये ऊर्जा के स्रोत 12 हैं बाहर, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और वो ऊर्जाओं को हम ग्रहण करता है, मनुष्य ग्रहण करने में सामर्थ्य होना चाहिए। वो ऊर्जा को, इसीलिए उसको कहा जाता है, वो प्रक्रिया को कहा जाता है धारी। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ आयु। दूसरा क्राइटेरिया है जीवित। जीवित उसको कहा जाता है कि वो जो प्राण या फिर जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी या फल फ्रूट, या ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया। तो जो भी हम बाहर से हम ग्रहण करते हैं वो शरीर के उपयोगी होने लायक बनना चाहिए। तो शरीर में और एक प्रक्रिया चालू होता है जिससे उसको कन्वर्शन होता है और शरीर के उपयोगी ऊर्जा में वो परिणत होता है।
तीसरा है नित्य, वो ऊर्जा तो बन गया, प्राण तो आ गया शरीर में, लेकिन वो हर जगह हर समय नित्य ग हर समय हर जगह पहुंचना चाहिए, मतलब उसका सर्कुलेशन एकदम प्रॉपरली हमेशा होना चाहिए ताकि वो हर जगह पहुंच पाए। और चौथा, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो जो ऊर्जा हमने ग्रहण किया, लास्टली जो हम काम करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लिखते हैं, या फिर जो भी हम वृत्ति करते हैं, उसमें ऊर्जा का यूटिलाइजेशन होता है, तो वो ऊर्जा कंप्लीटली वहां यूज हो जाना चाहिए। जब ये चारों क्रिया एक साथ निरंतर बिना बाधा में चलते रहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आयु। इस प्रक्रिया में वो जो मल की मैं बात कर रहा था, वो बाधा सृष्टि करता है। और ये प्रक्रिया जब ठीक से नहीं चल पाता, जहां भी ये इस प्रक्रिया का एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में है, एक एक धारी का, जीवित का, नित्यक का और अनुबंध का। तो इस प्रक्रिया में कहीं भी अगर बाधा सृष्टि होता है तो बल का हानि होता है और आगे सारी चीजें मल जमा होकर के दिक्कत होती है। तो अब जब हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये समझना जरूरी है कि ये जो धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये ठीक होना चाहिए। तो प्राण का ग्रहण मतलब हमारा खान पान सही होना चाहिए, खान पान सहन होने के बाद हमारे सिस्टम के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए, फिर हमारा सर्कुलेशन और जो स्रोतस है या जो पाइप्स है शरीर के अंदर, जो वेन्स है, जो आर्टरीज है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए ताकि वो पहुंच सके। और खाली पहुंचने से नहीं होगा, बाकी जो सिस्टम्स हैं जो उसको पहुंचाने में हेल्प करते हैं, वो सारे सिस्टम सही सही काम करने चाहिए। और लास्टली उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली होना चाहिए। तो अब जब हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं कोरोना के बारे में, जैसे हमने देखा कि इसमें बल की क्षय होता है, उसको इम्यूनिटी हम कहते हैं, और इसके बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो वो सर क्या स्क्रीन है? फिर से ब्लैंक है सर, वो स्लाइड्स नहीं शो हो रहा है सर। तो ये Yes, बल sir, अभी 3 दिख प्रकार रहा का होता है, एक सहज बल, एक कालज बल और तीसरा युक्तिकृत हाँ, बल। thank you, बल के बारे में डॉक्टर संघमित्रा ने अभी बताया, इसीलिए मैं बड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बल बहुत आवश्यक है। सहज बल मतलब जो बल हमारे शरीर और मानसिक बल हम जन्म से हम लेके आते हैं। कालज बल मतलब जो हमारे आयु, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है, यंग एज में इम्यूनिटी अच्छा होता है, और फिर ओल्ड एज में इम्यूनिटी घट जाता है। लेकिन इस डिसीज के कंडीशन में, कोरोना में, जैसे बच्चों को ये इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, हालांकि सेकेंड वेव में बच्चों भी इफेक्टेड हुए हैं, तो ये उनके बल के कारण हो रहा है। और युक्तिकृत मतलब खान पान और विभिन्न चेष्टा के माध्यम से जो बल हम एक्वायर करते हैं। अब उसकी बात, जिसकी बात हो रहा है, युक्तिकृत बल बढ़ाने की बात हो रहा है। अब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ये बल कैसे बढ़ सकता है? एक, ये बल बढ़ाने का एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं वो सही सही होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये जो बाहर से हम प्राण का ग्रहण करते हैं, जैसे ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसके 3 मेन माध्यम, वो 3 माध्यम है आहार, निद्रा और आनंद। ये 3 माध्यम बिल्कुल सही होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको ठीक करना बहुत 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 जरूरी है। और ये आहार, निद्रा, आनंद को अगर हमने ठीक कर दिया तो इससे अच्छा प्रिवेंटिव मेजर्स और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस स्लाइड को, भले बहुत छोटा स्लाइड है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आहार के बारे में डॉक्टर संघमित्रा ने काफी सारी चीजें बताया। मैं टेक होम मैसेज इसके बारे में देना चाहूंगा। घर में बना हुआ गर्म सुपाच्य आहार सीजनल वेजिटेबल्स के साथ लें। भोजन को जब भूख लगे तब ही लें, बिना भूख बिल्कुल 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 न खाएं। जो अधर्म का मैं बात कर रहा था ना, जो अधर्म जनपद ध्वंस की कारण है, मैंने जिसके बारे में बताया कि ये कोई स्पिरिचुअलिज्म या कोई धार्मिक बात नहीं है, वो ये है, धर्म मतलब है, मतलब मैं रोगियों को ऐसे समझाता हूं कि आप अगर बिना भूख खा रहे हो तो आप अधर्म कर रहे हो। ये आहार, निद्रा और आनंद का असम्यक पालन ही अधर्म है। अभी हमें ऐसा समझना है, यही धर्म हमें करना है। आहार,
जब भूख लगे तब खाना है। कितना खाना है? 25% कम खाना है। कैसे जानेंगे? एक दिन पेट भर के खा लीजिए, फिर जितना आप खा रहे हैं उससे 25% हर चीज का, दाल का, चावल का, रोटी का, सब्जी का घटा दीजिए, और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आपको उतना ही लेना है। अगर भूख नहीं है तो उससे कम लें, लेकिन उससे ज्यादा ना लें। कुछ पसंद आ गया तो कुछ मांग के ना खा लें। जब तक मास्क पहन रहे हैं ये नियम को पालन करें और जीवन भर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर द्विकाल भोजी आप हो सकते हैं तो इट इज नथिंग लाइक दैट। क्योंकि एक प्रसंग आता है महाभारत में, जब युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण को कि नित्य उपवासी कौन है, तो कृष्ण कहते हैं कि द्विकाल भोजी, जो द्विकाल भोजी है और जो बीच में कुछ नहीं खाता वो नित्य उपवासी है। तो आप अगर द्विकाल भोजी हो जाएंगे तो आप नित्य उपवासी हो जाएंगे, एकादशी आपको करने की आवश्यकता नहीं। द्विकाल भोजी मतलब एक बार सुबह 9-10 से मिड डे तक, और एक बार शाम को सूरज ढलने से पहले 8 बजे के बाद तो बिल्कुल ना खाएं। तो आप धर्म पालन कर रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद के विज्ञान के अनुसार हो जाएगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन डिटेल डॉक्टर संघमित्रा ने बताया है। नेक्स्ट, निद्रा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे प्लीज ध्यान से सुनिए। जो हम खाना खाते हैं वो तो पच गया, लेकिन सर्कुलेशन में जाने के बाद वो शरीर के भाग तभी बन पाता है, मर्मास्थि संधि में वो तब पहुंच के हम वृत्तियों में उसको उपयोग ढंग से तब कर पाते हैं जब हम प्रॉपर समय पे निद्रा लेते हैं। निद्रा, अभी ये आमतौर पे कहा जाता है कि 7-8 घंटे का निद्रा काफी होता है, कभी भी आप सो जाइए, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आपको मिडनाइट में, मध्य रात्रि में निद्रा लेना चाहिए। अगर 6 से 6, शाम की 6 से सुबह के 6 तक हम पूरा रात माने तो मिडनाइट लगभग भारतीय कॉन्टेक्स्ट में 10 से 2 बजे तक का होता है। तो आप 10 से 2 बजे के बीच अगर डीप स्लीप में सोए हुए रहेंगे तभी जाकर के निद्रा का पूरा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि निद्रा के माध्यम से भी प्राण का ग्रहण हम करते हैं। जो धारी मैंने बताया था, निद्रा के माध्यम से भी हम प्राण ग्रहण करते हैं, एनवायरमेंट के साथ जुड़ते हैं, और चंद्रमा के माध्यम से हम प्राण ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो कि हम जो खाए हुए रहते हैं उसको शरीर के भाग बनाने में मदद करता है। तो शरीर के भाग अगर वो नहीं बन पाए, इम्यूनिटी की जो हम बात करते हैं, इम्यूनिटी का एक निद्रा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। धातु के अंदर जो टिश्यू एलिमेंट्स है, टिश्यू है, वो अगर शिथिल है तभी जाकर के इम्यूनिटी घटता है, और ये वायरस या किसी भी दोष के मल वहां पहुंच के मारते हैं। अगर निद्रा हम प्रॉपर कर लेते हैं तो धातुओं में कंपैक्टनेस इतना अच्छा हो जाता है कि धातु बल बढ़ जाता है। इसीलिए इस कोरोना काल में 10 बजे बेड में चले जाएं, और जब अपने आप नींद खुले तब आराम से उठें। होना आयुर्वेद टेक्निकल भाषा में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मतलब लोग सेलिबेसी समझते हैं, लेकिन ये सेलिबेसी का एक बड़ा आयाम हो सकता है। ब्रह्मचर्य को हमने यहाँ आनंद इसलिए लिखा है कि ब्रह्मचर्य मतलब एक चर्या मतलब जैसे दिनचर्या होता है, रात्रिचर्या होता है, ऋतुचर्या होता है, ऐसे ब्रह्मचर्या, ब्रह्म मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड, परलोक, हमारे स्किन के बाहर का जो दुनिया है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, वो ब्रह्मचर्य है। तो बाहर के साथ हमारा इंटरेक्शन ऐसे होना चाहिए कि उसके आनंद मिले। आनंद मतलब खुशी नहीं, आनंद मतलब एक ऐसा स्थिति, भले सुख में भी और दुख में भी आपका एक स्टेट ऑफ प्लीजेंटनेस रहना चाहिए। अगर हमारा एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस ऐसे होना चाहिए कि हम हमेशा प्लीजेंट रहें। तो ये 3 एस्पेक्ट हमारे बल को बढ़ाते हैं। इससे अच्छा बलवर्धक भाव कोई दवाई, कोई खाना नहीं हो सकता। खाना आप सब खाइए, लेकिन ये जो आहार, निद्रा और आनंद का इन नटसेल मैंने कंसेप्ट बताया, आम लोगों के लिए इतना भी अगर आप लोग पालन कर लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी अच्छा बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं अगर, तो इसके बारे में इन डिटेल डॉक्टर संघमित्रा ने अभी बताया। जो डे टू डे एक्टिविटीज, दैनंदिन मल हम इकट्ठा करते हैं, उसके लिए दिनचर्या का वर्णन है। दिनचर्या में जो आहार की तो बात मैंने कर दी, इसके अलावा 2-3 चीजें हैं हमें करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के अगर खाली पेट हम अदरक और हल्दी का रस ले सकें तो बहुत अच्छा है। अदरक, हल्दी और शहद, इन तीनों को मिला के
ताकि हमारा पाचन प्रक्रिया अच्छा हो जाए। तो दैनंदिन मल का जो पैदा होने वाला था उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट, आहार की जो बात हमने कर दी। इसके अलावा दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, निद्रा में मैंने छोड़ दिया था। अगर दिन में बहुत नींद लगता है तो बैठे बैठे सो जाइए, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार बैठे बैठे अगर आप सोएंगे तो मल की इकट्ठा जमा नहीं हो, नहीं होता। और भोजन के बाद अगर थोड़ा बहुत कभी ज्यादा खा लेते हैं, उससे होने वाले मल को पचाने के लिए 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, इसको एक रूटीन में आप ले आइए। जस्ट खाने के बाद 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन आप ले लें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें करना चाहिए। कुछ व्यायाम और योग के बारे में तो आगे बताने वाले हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस अवस्था में संक्रमण मतलब ब्रिस्क वॉकिंग, 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इन एम्प्टी स्टोमक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर नहीं जा सकते तो छत में या घर के अंदर कहीं भी। लोग ये कहते हैं कि मैं तो घर का इतना काम करता हूं और मैं बिजी रहता हूं फिजिकल एक्टिविटीज में, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं तो घर में करने वाले काम और संक्रमण अलग अलग हैं। संक्रमण का लाभ घर में किए हुए काम से आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ संक्रमण करने के लिए ही संक्रमण करना है। ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 to 45 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप टू विच एक्सटेंट दैनंदिन मल की को काउंटरैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ऋतुचर्या के बारे में डॉक्टर संघमित्रा ने बताया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसका कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको इन डिटेल हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने बताया था इम्पल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसके लिए वेग मैनेजमेंट एंड सद्वृत्त का पालन बहुत जरूरी है। इसमें इन नटसेल आपको मैं ऐसे समझा दूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी इम्पल्स आपको आता है, गुस्सा आता है, लोभ आता है, शोक आता है, तो आप बस उसकी आवश्यकता को ध्यान में दीजिए। अगर वो आवश्यक है, वहां करना जरूरी है तो करिए, क्योंकि ये सारे आते हैं तो हमारे मदद करने के लिए। क्योंकि कभी कभी गुस्सा करना, कभी कभी शोक करना और कभी कभी दुखी होना जरूरी भी होता है, लेकिन वो क्या आवश्यक है, उसके करने से क्या मुझे फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो सोच समझ के करें। इम्पल्स मतलब ये जो इम्पल्सेस हैं वो उसके मास्टर आपको होना है, आप उसके गुलाम ना बने। अगर इसको कर पाएंगे, ये एक लेंदी प्रोसेस है, एक दिन में ये नहीं होता, लेकिन इस कोरोना काल में अगर हमें धर्म का पालन करना है, ये भी धर्म में आता है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये धर्म की बात कर रहा हूँ। ये अगर नहीं कर रहे हैं आप तो अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म अगर कर रहे हैं तो बाद में पाप का या अधर्म का जैसे प्रायश्चित करना पड़ता है, मल संचय होगा और फिर बाद में वैद्य के या डॉक्टर के पास जाके उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रसायन के बारे में डॉक्टर संघमित्रा ने इन डिटेल बताया है। रसायन इन नॉटसेल हम समझते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो उसका पूरा लाभ हमें मिल जाना और धातु तक वो पहुंच जाना है। तो इसीलिए ऐसा लघु और सुपाच्य आहार और गुनगुना आहार अगर हम खाएंगे तो इससे हमारा रसायन काम हो जाएगा। कोमॉर्बिडिटी की बात है, अभी अगर आप लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, आयुर्वेद से, एलोपैथ से, जिससे भी कर रहे हैं, ताकि उसका मल शरीर में जमा ना हो। जो विष या टॉक्सिन्स की बात हम कर रहे थे, उसके कारण अगर कोई मल जमा है तो उसके लिए तो अगध का स्पेशल वर्णन है आयुर्वेद में। कोई आयुर्वेद चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो इन डिटेल आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगध का सेवन भी हमें करना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वायु, जल, देश, काल, क्योंकि ये 4 एस्पेक्ट हैं जो जनपद ध्वंस करते हैं। तो इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी आया है तो उसको भी एलिमिनेट करने की उपाय पे हमें ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में अभी जो चल रहा है उसमें 2 चीजों के बारे में बताया गया है, स्थान परित्याग और प्रायश्चित। वैसे तो काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में, लेकिन अभी मैं ये 2 को समराइज किया हूं ताकि आप लोगों को उससे फायदा मिल पाए। स्थान परित्याग की बात हो रहा है, आइसोलेशन की हम बात करते हैं। जो मास्क पहनना है, जो हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं, बिना जरूरी घर से बाहर नहीं जाने की बात आती है, तो ये सारी चीजें स्थान परित्याग के अंदर ही आता है। तो इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल अभी सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है वो सारे इसी स्थान परित्याग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प्रायश्चित मतलब हम पाप किया था या अधर्म किया था, उससे प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित के लिए आयुर्वेद में त्रयोषणा और सद्वृत्त के बारे में बताया गया है।
अभी इसका हिंट मैंने थोड़ा सा दिया था। अब त्रयोषणा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। त्रय अषणा मतलब 3 एषणा। एषणा मतलब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन डिजायर होता है, लेकिन ऐसे डिजायर जो कि आपके आवश्यकता को मिटाता हो, वैसे डिजायर को हम एषणा कहते हैं। अभी ज्यादा बाहर न जाए बोलते हैं, यही त्रयोषणा में आता है कि अगर आपको आवश्यकता नहीं है अब इस स्थिति में, तो कुछ भी ना करें, बिना आवश्यकता के कोई भी काम ना करें, ना बाहर जाएं, ना खाएं, ना सोएं, आवश्यक चीजों को ही करें। एषणा 3 प्रकार का होता है, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। प्राणेषणा मतलब ऐसी इच्छा का आप धारण करें जो कि आपको स्वस्थ रखने में आपको मदद करेगा। इसका इंफॉर्मेशन एबंडेंट है, इसको सीरियसली लें और ऐसी ही आवश्यकताओं का पूरा करें जो आपको स्वस्थ रखेगा। दूसरा धनेषणा, धन की आवश्यकता है तो धन उपार्जन करने के लिए ऐसे ऐषणा जो कि प्राण के उपघात न करे, ऐसे ऐषणाओं का इच्छाओं का धारण करें और धन उपार्जन करें। थर्ड इज परलोकेषणा। मैं अभी परलोक मतलब हमारे स्किन के बाहर का जो एनवायरमेंट है, स्किन के अंदर यह लोग, स्किन के बाहर परलोक। तो हमारा जो इंटर एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता जितना हो उतना। अभी यही धर्म है, इसी धर्म का अगर पालन करेंगे तो अधर्म का नाश होगा और हम इस महामारी से बहुत अच्छे से बच पाएंगे। और सद्वृत्त की बात डॉक्टर सौरभ बहुत कर रहे थे कि यकीन मानिए वो जो बोल रहे थे मैं भी उसको बोल रहा हूं कि जितनी भी बातें अभी प्रिवेंशन के लिए कही जा रही है वो सारी चीजें सद्वृत्त के अंदर इन डिटेल बताया गया है। सारी जो सैनिटाइजेशन की बात हो रहा है और जो भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात हो रहा है वो सद्वृत्त के अंदर आता है और ये आपको आनंद भी देता है। आनंद प्राप्ति के लिए ये सद्वृत्त का पालन हमें करना है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बार बार बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन कवल गंडूस करना बहुत जरूरी है। कवल गंडूस मतलब कुल्ला करना या मुंह में कोई द्रव पदार्थ को रख के उसको मुंह के अंदर चलाना, उसको कहते हैं कवल। और गंडूस मतलब उसमें मुंह के अंदर इतना भर देना कि वो हिलाया ना जा सके। तो इसमें हम त्रिफला क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जनरल गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे मुंह के म्यूकस कैविटी का सैनिटाइजेशन होगा और अगर कुछ बाय चांस कोई वायरस अंदर गया है तो उससे हम बच पाएंगे। नस्य के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, नाक में तेल डालना, स्थिर तेल डालना, तो नारियल तेल, तिल का तेल, देसी गाय का घी, अणु तेल या सड़बुंदू तेल को आप डाल सकते हैं। 2 बूंद एक नॉस्ट्रिल में डालना है। धूमपान के बारे में अपामार्ग धूम या किसी वैद्य से आप मिलेंगे तो उनसे डिटेल इसके बारे में जान पाएंगे। ये स्मोकिंग, टबाको स्मोकिंग की बात नहीं है, ये अंदर लेने का बात है। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीम इनहेलेशन, लेकिन उसकी विधि सही होना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन में आप एक काम करें, 2 लीटर पानी उसमें सादा पानी का भी स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं और उसमें कुछ औषधीय द्रव्य भी डाल सकते हैं। औषधीय द्रव्य में आप हल्दी, पुदीना पत्र या फिर पुदीना अर्क, अजवाइन डाल सकते हैं या फिर अजवाइन अर्क ले सकते हैं और कर्पूर। तो अगर पुदीना अर्क 5 ड्रॉप, अजवाइन अर्क 5 ड्रॉप और 500 मिलीग्राम का कर्पूर और हल्दी डाल के पानी को उबाल दीजिए। पहले से पानी उबालते वक्त हल्दी डाल दीजिए और बाद में जब वो उबलने लगे उसमें ये बाकी 3 चीज डाल के नाक से 10 बार स्टीम को लीजिए, मुंह से छोड़िए और मुंह से 10 बार लेके नाक से छोड़िए। तो ये अगर बाई चांस ये नाक में घुस गया है तो इससे हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैंने आर्द्रक हरिद्रा स्वरस की बात की, ये भी आपको प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। संक्रमण की बात हमने कर ली, पोस्ट मील जीरक और अजवाइन की भी बात हमने कर ली और आरोग्याम्बु सेवन के बारे में अभी डॉक्टर संघमित्रा ने इन डिटेल बताया था। मतलब 1/4 उबला हुआ पानी, दिस इज ए बेस्ट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिसिन। ये आपको प्रिवेंशन और क्यूरेटिव एस्पेक्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इस दौरान जब भी पानी पिएं, अगर ये संभव नहीं है तो 1/4 उबालना, तो कम से कम आधा उबाल के गरम ही पानी पिएं। पानी पीने का भी नियम ऐसा है कि बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए। एक कंसेप्ट जो अभी चल रहा है कि जितना पानी पिए उतना अच्छा है, आयुर्वेद इस विज्ञान को, इस कंसेप्ट को नहीं मानता। उल्टा अजीर्ण नाम का एक महाव्याधि है जिसका प्रथम कारण इसको माना जाता है।
इसीलिए पानी जब प्यास लगे तब भले थोड़ा सा ज्यादा पी ले तो चल जाएगा, लेकिन बिना प्यास के बिल्कुल पानी ना पिएं। और इस महामारी के काल में आप आरोग्याम्बू का सेवन करें, नहीं तो गुनगुना पानी का सेवन करें, या फिर आधा उबला हुआ पानी का सेवन करें। ये जो कंडीशन है, इसको अगर हम नाम देना चाहेंगे तो आयुर्वेद के अंदर इसको औपसर्गिक, जनपद ध्वंसिक, सन्निपातिक, आगंतुक ज्वर, ऐसा हम कह सकते हैं। ये तो इसीलिए पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में तो मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक वैद्य के पास जाना है। लेकिन घर में आप क्या कर सकते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस है जो कंट्राडिक्ट करता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से के साथ, उसको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। ज्वर जब होता है तो तरुण अवस्था, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज को तरुण अवस्था कहा जाता है, मतलब इनिशियल 3, 5 या 7 दिन तक उसको हम तरुण ज्वर बोलते हैं। तो तरुण ज्वर में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वेरी वेरी क्लियर है और विथ एविडेंस, मतलब वो पूरा वैज्ञानिक है। मैं लास्ट 5 साल से ये प्रयोग मैं अपने घर में और मेरे सारे मरीज में जो मुझे ज्वर के लिए पूछते हैं या मेरा कंसल्टेशन लेते हैं, हम उनको कर रहे हैं। और यकीन मानिए हर प्रकार का ज्वर इससे ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब लघु हो जाता है, और अगर आगे बढ़ता भी है तो उसका मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करना है, अगर इस दौरान प्रिवेंशन की बात कर ली, फिर अगर हो गया तो इनिशियली हमें क्या क्या करना है बात कर लिया। अब अगर आपको ज्वर आ जाता है तो क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूं। ज्वर का जो कंसेप्ट है तरुण अवस्था में, इनिशियल फेज में, वो है ये क्यों कर रहे हैं हम कि नवीन ज्वर की अवस्था में जो मल शरीर में पैदा होता है, मल की बात मैंने पहले समझा दी है आपको, तो उस मल को पाचन करने के लिए ये उपाय अगर हम कर लेते हैं तो आगे ज्वर बढ़ नहीं पाएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्वर जो सीजनल फीवर होते हैं वो तो 3 से 5 दिन में सिर्फ इसी से ठीक हो जाते हैं, आगे कोई मेडिसिन लेना ही नहीं पड़ता। और कोरोना में भी हमारे जितने भी पेशेंट कर रहे हैं, और इसमें जो उनमें से किसी हॉस्पिटलाइजेशन होना नहीं पड़ा है। तो करना क्या है कि जैसे ही बॉडी में टेम्परेचर आए तो कुछ भी नहीं खाना है। यहाँ लंघन का मतलब है अनशन, कुछ भी नहीं खाना है, और सिर्फ आरोग्याम्बू को पीना है। 4 लीटर पानी को उबाल के 1 लीटर कर लीजिए, उसको गरम गरम हर घंटे चाय की तरह फूंक फूंक के पीजिए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसको गुनगुना आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा लीजिए, जितना ले सकते हैं उतना लीजिए ताकि आपको बहुमूत्रता हो जाए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। ज्वर में वैसे भूख क्षुधा होता ही नहीं है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। और जैसे ही ज्वर अब आगे धीरे धीरे घट जाए, एक्चुअली ज्वर के 3 अवस्था होता है, वो तो एक वैद्य से आप मिलेंगे तो बहुत अच्छा वो समझा सकते हैं। लेकिन आमावस्था, पच्यमानावस्था और पक्वावस्था, ये 3 अवस्था क्रॉस हो जाने के बाद ज्वर मृदु हो जाता है, मतलब टेम्परेचर अब घट जाएगा, आपको धीरे धीरे भूख होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको भूख होना शुरू हो जाए तब आप फिर एवागू ले सकते हैं। एवागू मतलब गर्म और प्रवाही आहार। श्रेष्ठ बढ़िया है साली धान्य, मतलब चावल का मांड लें, और उससे भी अच्छा है मुद्गयुष, मतलब 1 मुट्ठी मूंग की दाल को 400-500 ml पानी में, उसमें एक सरगवा या मुनगा या ड्रमस्टिक को काट के डालिए, अदरक डालिए, हल्दी डालिए, सेंधा नमक डालिए, तो थोड़ा सा घी भी आप डाल सकते हैं क्योंकि आपका भूख शुरू हो गया है, और उसको उबाल दीजिए। ये जो मुद्गयुष तैयार हुआ उसको आप सूप की तरह लीजिए जब आपका भूख धीरे धीरे शुरू हो। फिर धीरे धीरे भूख जैसे बढ़ता जाएगा फिर दाल चावल सब्जी लीजिए, और पूरा भूख हो जाने के बाद पूरा आहार 25% कम आप ले सकते हैं। तो ये आप 3 दिन या जब तक ज्वर घट नहीं जाता है कर लेते हैं तो आगे आपका मैनेजमेंट बहुत 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 आसान हो जाता है। इसमें अगर आपको जलन और ये सब हो तो आरोग्याम्बू के जगह सड़ंग पानिया ले सकते हैं। सड़ंग पानिया का डिटेल इसी वैद्य आपको बता देंगे। और इसके बाद फिर चिकित्सा की बात आती है, और उसके डिटेल प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने दिया है, और वैद्य स्थिति को भांपते हुए अलग अलग चिकित्सा कर सकते हैं। जो पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक ड्रग हम शुरू से ले लेते हैं वो हमें हानि पहुंचाता है।
ज्वर का उपद्रव जो ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स बाद में हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होता है, वो आयुर्वेद के मतानुसार ज्वर को, वेग को रोकने से या प्रॉपर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट से होता है। अगर हम इसको प्रॉपरली तरुण अवस्था में मैनेज कर लेते हैं तो आगे रक्तपित्त या फिर श्वास या फिर जो भी जो उपद्रव हो रहे हैं उसमें नहीं होगा, या अगर भी होगा तो माइल्ड लेवल का होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें 1% ही मोर्टेलिटी है। तो ये ज्वर चिकित्सा के बारे में मैंने बताया। इसमें इसको सबको किसी वैद्य के सलाह में रह करके इसको कर सकते हैं, और ये करने से यकीन मानिए आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि ज्वर एक वेग है और एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन जो शरीर के अंदर आता है वो मल को पाचन करने के लिए ही शरीर ज्वर को पैदा करता है। तो ज्वर को हम एक पॉजिटिव चीज मान के लें। और ज्वर, कुछ लोगों को लगता है कि ज्वर बहुत बढ़ जाएगा। मेरे प्रैक्टिस में अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, कभी भी ज्वर अगर डे 1 से हम इसी से को पालन करते हैं तो कभी नहीं बढ़ता। इवन 4-4 महीने के बच्चों में भी हमने इसका प्रयोग किया है। अब मैं जो कोविड का प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। उसके लिए आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल भी है और वैद्य अपने विचार से उसमें ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन कहने की बात यह है कि आयुर्वेद में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हर कंडीशन के बारे में वर्णन है और उसका मैनेजमेंट भी बताया गया है। अगर मौका दिया जाएगा तो उसको किया जा सकता है। कुछ राज्य में जहां एलोपैथिक के साथ आयुर्वेद का प्रैक्टिस अलाउ किया गया है, रोगी अपने स्वतंत्रता से चयन कर रहे हैं, वहां बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ही बहुत कम पेशेंट में आ रहा है जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, क्योंकि कोविड हो जाने के बाद पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, फटीगनेस, मेंटल प्रॉब्लम्स और चेस्ट में भारीपन, और अभी ब्लैक फंगस डिसीज नया आ गया है जो कि महामारी हो चुका है। तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? तो बलवर्धन भाव जो इससे पहले मैंने बताया, आहार, निद्रा, आनंद और त्रयोषणा का पालन और जितने सारी चीज़ें हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना ही है। इसके अलावा जो आहार हम सेवन करें, फटीग, जो थकान बहुत लग रहा है, उसके लिए तर्पण चिकित्सा चाहिए। और गर्म, प्रवाही, सुपाच्य आहार से अच्छा तर्पण और कोई चीज नहीं कर सकता। मैं अभी कोई द्रव्य, कोई दवाई की बात नहीं किया हूँ, मैं घर में उपलब्ध जो सारी चीजें हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा शरीर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसको अगर प्रॉपरली उसका यूजर मैनुअल के हिसाब से हम हैंडल करेंगे तो वो खुद ही सक्षम है। बस मल हटाने की बात है। मल हटा दिए और नया मल अगर बनने ना देते हैं तो हमारी सारे काम बॉडी खुद कर सकता है। तो बल पूरा प्राप्त न हो जाने तक, शरीर पूरा ठीक न हो जाने तक, आपको नॉर्मल न लगने तक खाना गर्म और सेमी सॉलिड, प्रवाही हो तो बहुत अच्छा है। मुद्गयूस की जो बात मैंने किया वो बहुत बढ़िया है, दलिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो खाना लें उसमें आप द्राक्षा, मुनक्का, खरजूर के पानक भी ले सकते हैं। अनार का रस ले सकते हैं। अनार और ये फल का रस में अभी काली मिर्च का थोड़ा काली मिर्च और अजवाइन मिला के, और सिर्फ काली मिर्च भी मिला के अगर उसको लें, लेकिन रस लेने का एक विधि है, यहाँ आप लोग प्लीज उसको ध्यान रखें। रस को शिप करके पीना है, ढक ढक करके नहीं पी जाना है एक बार में, ताकि वो मुंह में जाए, सलेवा के साथ वो मिले और उसके बाद जाए। मतलब 100 ml स्वरस को, फल रस को आप जैसे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में पी रहे हैं। यहाँ और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार कि जो कुछ फ्रूट्स है जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन भी हो रहा है कि साइट्रिक फ्रूट लीजिए, लेकिन ऑरेंज या मौसम्बी आयुर्वेद के अनुसार गुरु है, तो उसके क्योंकि वो स्वादिष्ट हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, लेकिन वो पचने में भारी है। इसीलिए उसका सेवन तभी करें जब आपका भूख बहुत बढ़िया हो जाए। इसके अलावा निद्रा, आनंद, सुंठी धान्य जल और घृत का भी सेवन करना चाहिए। जो आप यूष बनाएंगे उसमें मुद्ग यूष या जो भी खाना है उसमें गोघृत, खास करके देसी गाय का घी मिलाइए। च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। यही
काउंट मिलता है। और आप अगर सांस फूलने की तकलीफ है तो ये विधि आप कर सकते हैं घर में। आपता लवण तैलेन, मतलब आपके छाती में संध्यवादी तेल नाम का एक दवाई बाहर मिलता है दुकान में, उसको ले सकते हैं, या फिर घर में देसी गाय का घी या तिल के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको गर्म कर दीजिए, छाती में उसका मालिश करिए और उसमें स्टीम दीजिए, या आयरन या किसी भी गर्म कपड़ा या हॉट वाटर बैग से छाती को सेक करिए। ये अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको सांस लेने की तकलीफ में धीरे धीरे बहुत आराम मिलेगा। और इसके साथ मैं अपना वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैंने जो भी बताया ये मैंने अपने गुरुओं से और पूर्व वैद्यों से सीखा है। इनमें से और कुछ चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस से मैंने बताया। तो इसका आप लोग पालन करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों के सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत आनंद मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चंस के लिए सर डिस्कशन हमने एंड में रखा है, और आपने सर Okay. इतने अनुभव से अपने जो चीजें हमारे साथ शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दवाइयाँ जो इजीली अवेलेबल हैं वो बताया, और घर के अंदर भी जो चीजों से हम आसानी से कोविड में और पोस्ट कोविड कंडीशंस में कैसे इस्तेमाल करके जो है कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much, sir. Most welcome. So since we are running a bit like really late, so without much ado, I request Dr. Debasmita Mohanty, Associate Professor, Department of Shalya in Gaur Brahman Ayurveda College, Brahman Bas, Rohtak. एंड आप जो है अपना व्याख्यान आज देने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने आहार की बात किया, निद्रा की बात किया, सर ने भी अभी बताया महत्व को, तो वैसे ही अभी वो थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे निद्रा के ऊपर। To sleep tight to fight COVID-19. I request Dr. Debasmita Mohanty to start with her presentation. Thanks, Dr. Garima. Am I audible? Yes, ma'am. You're audible, ma'am. Okay. Good evening, everyone. जस्ट मैं कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ पहले। जैसे कि आज It's visible, हमें ma'am. The ये slides are visible. ओके जैसे कि हमें ये आज डिस्कशन करना है निद्रा का क्या इम्पोर्टेंस है कोविड-19 मैनेजमेंट में। और बहुत टाइम जा चुका है, मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी ही जो इंफॉर्मेशन मुझे देना है वो मैं कंप्लीट करूं। पहले हमें ये देखना है निद्रा का क्या इम्पोर्टेंस है, कोविड-19 के साथ कोई रिलेशन है क्या। तो लेटेस्ट स्टडी से ये पता चला है जिस दिन हम वैक्सीनेशन करवाते हैं अगर उस दिन हम स्लीप नहीं लेते हैं तो कोविड-19 वैक्सीन के अगेंस्ट में जो हमारा एंटीबॉडीज जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता है, कम बनता है। और रिसेंट स्टडी से ये भी पता चला है जब हम रात को अच्छे तरह से नींद लेते हैं और अच्छी क्वालिटी का नींद लेते हैं, काफी टाइम सोते हैं, जिनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस कुछ है ही नहीं या फिर कम है या फिर जिनका इमोशनल बर्डन कम है, वो सारे लोग लेस अफेक्टेड होते हैं कोविड-19 से। तो इससे ये पता चलता है कि कोविड-19 और निद्रा दे बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो और एक बात जो कि हमें पता है हमारे जीवन का अभिन्न है निद्रा। यूजुअली हम 24 घंटे में से 8 घंटा सोने में काटते हैं और हमारे टोटल लाइफ स्पान में से 1/3 हम सोने में ही काटते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो 16 से 18 घंटा नींद लेता है। तो जब ये धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है उसका नींद कम होता जाता है, यानी कि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये नींद जरूरी होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकृति जो नींद हमें दी है इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो है ही। नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे हम सब ये हमको पता है अगर हम प्रॉपर्ली नींद नहीं ले पाते हैं तो क्या होता है। अगर प्रॉपर्ली नींद किसी को रात को नहीं आता है तो क्या होता है, नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम पहले ये बोलते हैं रात को नींद नहीं आई अच्छे से, ये हम बोलते हैं। और जैसे हमारे फ्रेशनेस, जैसे जितना फ्रेश हम फील करना चाहिए, हमें फील होना चाहिए, वो नहीं होता है।
जितना एनर्जेटिक हम फील करना चाहिए हमें, अगर हम प्रॉपर नींद लेते हैं वो नहीं होता है। जिससे किसी काम में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारे प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होता है। यानी जो टाइम बाउंड में हम जितना काम कर सकते हैं, हमें वो काम करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे नींद अच्छे से नहीं आता है, फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी रहता है, यानी मन की स्थिति भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम कुछ दिन तक कंटिन्यूअसली 3 दिन तक नींद नहीं लेते हैं प्रॉपरली, तो क्या होता है, हमारे स्किन में वो विजिबल होने लगता है, आंखों के नीचे वो काले दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज हम फील कर सकते हैं, ये सारी चीज हम feel कर सकते हैं, जो कि हम अगर हमें प्रॉपरली नींद नहीं आती है तो ये हम फील करते हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्रॉपरली नींद लेते हैं, अच्छे से नींद लेते हैं, तो हमें क्या क्या होता है, क्या हमारे साथ क्या इफेक्ट, क्या बेनिफिट्स होता है, जो कि लगभग सबको पता है। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट सबको पता है। यूजुअली हमें लगता है कि सोने हम जा रहे हैं, ये एक क्रियाहीन प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी टाइम पे हमारे बॉडी बहुत सारे काम में जुट जाता है, जैसे वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता रहता है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चालू होता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और नेक्स्ट डे हमें उतना ऊर्जा प्रदान करती है, और नेक्स्ट डे के एक्टिविटीज के लिए हमें तैयार रखती है। अगर देखा जाए तो ये हमारे सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। जैसे आचार्य चरक के हिसाब से, उनके मत से, निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि कार्य का बड़ा बलम कृषता क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नश्च। यानी हमारे शरीर में अब जो हेल्थ, ग्रोथ, इम्यूनिटी, विगर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेमोरी, लस्टर, लाइफ स्पान, हैप्पीनेस, ये सारी चीज सम्यक निद्रा से ही हमें मिलती है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल किसी दिन हमें प्रॉपरली नींद नहीं आया, तो सुबह उठ के हमारा डाइजेशन, हमें लगता है कि जैसे भूख नहीं है, तो रात को मैंने खाया था वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमें एनर्जेटिक फील नहीं होता है, तो हम डल रहते हैं, कुछ भी करने को मन नहीं होता है। तो यानी ये हमारे हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है। अगर हम प्रॉपरली नींद लेते हैं तो हमें वो सुख प्रदान करता है, फ्रेश फील कराता है। यानी कि देखा जाए तो ये सारे हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव फंक्शंस को भी मेंटेन करता है, हमारे कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। यानी कि हम नींद लेते हैं प्रॉपरली, यानी कि अच्छी नींद आती है, तो ये चीज हमारे साथ होती है। और नींद ना लेने से, एक दिन अगर हमें प्रॉपरली नींद नहीं आई, तो फिर हमें क्या क्या होता है वो हम फील कर सकते हैं। अभी कोविड-19 को हमारे साथ रहते हुए लगभग 1 साल हो चुका है। इसमें हम बहुत सारी चीज के बारे में इंटरनेट से, व्हाट्सएप से और डिफरेंट सोर्स से हमें पता है। जैसे हमें क्या काढ़ा लेना है, कौन सा आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है, क्या ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉलो करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ये सारी चीज हमें पता है। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज पता है, जो कि है इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो ये इम्यूनिटी है क्या? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, जिसको हमें ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हमें बढ़ाना है। क्या आपको ये पता है कि प्रॉपर स्लीप अगर हम लेते हैं तो ये हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी एंड स्लीप, ये बोथ बाई डायरेक्शनली लिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ये सारी चीज होता है, तो हम स्लीपी फील करते हैं। यानी हमारे जो इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिवेट होने के लिए हमें स्लीपी फील होता है, यानी कि हमें नींद लेना जरूरी होता है। और जैसे हम प्रॉपरली नींद लेते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ब्रॉडली अगर देखा जाए, जैसे टी सेल, बी सेल, which are responsible for our immunity booster, यानी कि वो हेल्प करते हैं। कैसे? टी सेल आइडेंटिफाइज एंड मेमोराइजेस द पैथोजन, जो कि हमारे शरीर के अंदर आता है। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो ऑर्गेनिज्म को मारता है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है, ये हम अगर अच्छे नींद लेते हैं तो ये मेंटेन होता है, एक्टिवेट होता है।
यानी स्लीप प्रभावित करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। जैसे जैसे कि स्लीप इंक्रीज, प्रॉपर स्लीप होगा तो इम्यून सिस्टम बैलेंस होगा और ये सारे एक्टिविटीज बैलेंस होगा और हमारे शरीर में जो पैथोजन आए हैं उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे शरीर को क्षमता मिलेगी। इसीलिए पहले कहा गया है वैक्सीनेशन के दिन अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो एंटीबॉडीज बनना कम होता है, शरीर में कम होता है। और आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि 19 के कारण लॉकडाउन, शॉटडाउन, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चल रहा है। इसके कारण हमारे डेली रूटीन में सारे चीज गड़बड़ है। जैसे कि हम कभी टीवी देख रहे हैं, कभी मोबाइल पे लगे हुए हैं, जहां हम 2 बार चाय पीते थे वहां 4 बार चाय पी रहे हैं। ऐसे सारे रूटीन हमारे गड़बड़ हो रखा है। इसके साथ साथ हमारे स्लीप डिप्राइवेशन भी हुआ है। तो स्लीप डिप्राइवेशन के कारण हमें जो जो चीज मिल, यानी कि जो जो इफेक्ट हमारे शरीर में होता है, 2000 जैसे अटेंशन डेफिसिट, डिप्रेशन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कॉग्निशन एंड मेमोरी डेफिसिट, ये सारे चीज के साथ साथ इम्यूनिटी डिक्लाइन, यानी इम्यूनिटी भी हैम्पर होता है इसके लिए। नेक्स्ट हमें ये बात करना है कि हमें हमारे स्लीप क्वालिटी को कैसे ये इंक्रीज करना है, यानी हमें अच्छी नींद आ रही है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अच्छी नींद आ रही है या नहीं। तो इसमें 2-3 चीज है जिसको आप अगर खुद एसेस करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नींद अच्छी या नहीं है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर टाइम में सोते हो, यानी जो टाइम आपके सोने के लिए फिक्स होता है, अगर जो टाइम आपके सोने के लिए फिक्स होता है उसी टाइम में अगर आपको नींद आ जाती है डेली, तो आप ये एक साइन है जो कि आपकी नींद सही है, देवस्मिता मैम, आपको सही टाइम पे नींद आती है। हाँ जी, देवस्मिता मैम, स्लाइड्स थोड़ा हेलो। प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है। आप मैम या तो अच्छा, एक ठीक बार है, ठीक है, रीशेयर कर ठीक है। देंगे वापस हाँ करके, स्टॉप शेयर करके। अच्छा, ओके, हुआ, हाँ अभी अभी ठीक है हुआ, मैम, नाउ इट इज फाइन। यस मैम, थैंक यू। ओके। लास्ट साइड, एक मिनट, बैक, ओके। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्लीप गुड स्लीप है, यानी निद्रा अच्छी है या नहीं है। तो सोने के लिए एक प्रॉपर टाइम होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आज हम 8 बजे सो गए, कल हम 10 बजे सो गए, तो हम कुछ पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, 12 बजे सोएंगे। हमेशा हमारा एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए सोने के लिए, यानी कि अगर हम 10 बजे सोने जाते हैं, डेली हम कोशिश करें कि उस 10 बजे तक ही हम सो जाए। तो अगर हमें डेली 10 बजे नींद आ जाती है, अगर हमारा स्लीप में कोई ड्रीम्स नहीं होता है जो कि हमें डिस्टर्ब करती है, या फिर नेक्स्ट डे जब हम उठ हमें उतना फ्रेशनेस फील होता है, तभी हम जानते हैं कि ये हमारा स्लीप यानी कि अच्छी स्लीप है, यानी अच्छी नींद आई है हमें। तो अच्छी नींद आई है यानी हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। और हमें पता चलेगा कि हमारे स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, अगर हम कंटिन्यूअसली एक हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट से ज्यादा हमें नींद आने के लिए, अगर ये होता है, हम प्रॉपर टाइम में जो हमारा सोने का टाइम है उस टाइम में सो नहीं पाते हैं, जितना ड्यूरेशन कंप्लीट हमें करना चाहिए यानी कि 8 घंटा कम से कम सोना है, उतना हम सो नहीं पाते हैं, बहुत खराटे लेते हैं। जैसे सोने के टाइम हमें गले में चोकिंग जैसा फील होता है, और सोते हुए हमारे हाथ पैर मूवमेंट कर रहा है, हम बड़बड़ा रहे हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, हमें लिथार्जिक फैटिक फील होता है, फ्रेशनेस फील नहीं होता है। अगर ये सारी चीज होता है तो हमें ये पता है कि हमारा स्लीप डिस्टर्ब है, पता लगना चाहिए कि हमारा स्लीप डिस्टर्ब है। अगर हमारा स्लीप डिस्टर्ब है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे कुछ सिचुएशंस है जो हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कुछ रेजिमेंट्स है जो हम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि ताकि हमारा यानी कि स्लीप क्वालिटी को हम ही कुछ इम्प्रूव कर पाए। पहला, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ, एक मिनट। जो स्टिमुलेंट्स है यानी कि जो हमारी नींद को भगाती है, जैसे हमें रात को सोने के टाइम कॉफी,
या इवनिंग में कॉफी चाय ये सब नहीं लेना है, अल्कोहलिक बेवरेज नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, एंजाइटी, फियर, एंगर, आर्गुमेंट्स ये सबसे दूर रहना है। एटलीस्ट हमें ये सारी चीज मेंटेन करना है, ध्यान रखना है। और जैसे जो डिस्ट्रैक्शन से जो हमारे मन को दूर भगाता है, जैसे टीवी देखना, मोबाइल में बहुत टाइम लगे रहना, नींद आ रही है फिर भी ना सोना, अगर ज्यादा खाना खाना या फिर कम खाना या बिल्कुल नहीं खाना, सोने से पहले एक्सरसाइज करना, अगर हमारा सोने की जगह पोजीशन एंड मैट्रेस बेड ये यानी कि कंफर्टेबल ना हो, ये सारे चीज हमारे नींद को भी भगाने में मदद करते हैं, यानी कि हमारे मन को डिस्टर्ब करते हैं। तो मन को शांत करके माइंड और बॉडी के एक कोरिलेशन करने के बाद ही हमें नींद आती है। तो इसीलिए हमें कुछ चीज को फॉलो करना जरूरी होता है, जैसे टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग एक मेंटेन करना है और डेली उसी टाइम पे हमें नींद लेना है। दिन में नहीं सोना है, या शाम को या सुबह कभी भी हम सो जाए ऐसा नहीं चलता है। और अगर हमें रात को हम सो नहीं पाए, वो स्लीप डिप्राइवेशन को कंपेंसेट करने के लिए हम दिन में नींद ले सकते हैं। ये रहा टाइमिंग के बारे में। और नेक्स्ट हम कैसे माहौल क्रिएट करेंगे सोने के लिए, जैसे कि पीसफुल माहौल होना चाहिए, ऐसे नहीं शोर शराबा चल रहा है। तो अगर हमें नींद नहीं आ रहा है, हमारा डिस्टर्ब स्लीप है, तभी हम ये सारे स्टेप कर रहे हैं। ऐसे साइड में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहा है साइड के रूम में, आप इस रूम में सोने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा। इसीलिए पीसफुल एम्बियंस आपको चाहिए, सोने के लिए पीसफुल माहौल चाहिए। जो लाइटिंग सिस्टम है वो डिम होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है वो हमारे मेलानिन सीक्रेट करता है और हमें नींद आने में वो हेल्प करता है। और एडिक्वेट पोस्चर भी मेंटेन करना चाहिए, जो कंफर्टेबल पोजीशन है, जो कंफर्टेबल यानी कि एरिया जगह है जहाँ पे आप सोते हो। ऐसे भी आप कर सकते हो, कुछ फ्रेग्रेंस की या फिर कुछ फूल रखो उस रूम में, कुछ अगरबत्ती जलाओ, ताकि उसका जो सुगंध चारों तरफ फैले, आपको अच्छा फील हुए और फिर आपको आराम से सो पाओ या नींद आए। नेक्स्ट, माइंड एंड बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना है, जैसे प्राणायाम, योग निद्रा, स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स, जैसे कि कुछ स्लो म्यूजिक, जो सुदिंग म्यूजिक है, जो आपको यानी कि ये देता है, शांति देता है, आपको कामनेस क्रिएट करता है। और शवासन टाइप का ऐसे कुछ हम इससे भी हम माइंड और बॉडी का रिलैक्सेशन करते हैं और रिलैक्स करके सोने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स कुछ है जो कि अगर हमारा स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो वो मानने की कोशिश करते हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में उसको ये करने के अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमसे इससे भी कोई फायदा नहीं बनता है तो फिर हमें जो स्लीप स्पेशलिस्ट है उनसे मिलना चाहिए और उनका सलाह लेना चाहिए। यानी कि ये लास्ट में हमें ये पता चलता है, आप कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए जो सारी चीज भी आप फॉलो करते हो, अगर आप स्लीप प्रॉपर्ली नहीं लेते हो, ये आपके इम्यूनो सिस्टम को रिजुविनेट नहीं करते हो, एक्टिवेट नहीं करते हो, तो आपको जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। निद्रा पर, स्लीप पर इतनी शॉर्ट में इतने क्रिस्प इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड एक हेल्थ एंड हार्मनी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल, इस चीज पर जो आपने जोर दिया वो बहुत ही मुझे लगता है सभी के लिए जानना जरूरी था। अभी हमारे लास्ट स्पीकर आज के जो कि डाइट के बारे में बताने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विजयश्री सतपति, MD Swasthvit and Yoga, Diploma in Yoga from BHU, Medical Officer in Ayurved, Government of Ayurveda. तो मैं उनका आपका डाइट एंड योगिक प्रैक्टिसेस इन पोस्ट कोविड एंड कोविड एंड पोस्ट कोविड कंडीशंस में डाइट एंड योगिक प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, क्या खान पान और योगा होना चाहिए, इस पर आप प्लीज अपना थोड़ा सा लाइट डालें। डॉक्टर विजयश्री सतपति। Thank you, Dr. Garima. Am I audible? Yes, you are audible, doctor. Okay. Let me share my screen. मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी?
You are visible, Dr. Vijayashree. I mean, like, we can see you. Slide, is my slide is No, also visible or not? no, I'm not able to see your slides. आप share screen कीजिए तो we'll be able to see. Yeah. Now is it visible? Yes, yes, it is visible. Oh. Myself, Dr. Vijayashree Shatpathy. I am doing Swasthit and Yoga. एंड मैं अभी मेडिकल ऑफिसर पे तैनात हूँ आयुर्वेद गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में। तो ऑलरेडी कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं, क्या खाना चाहिए, कोविड-19 क्या है, ये सब आप जान चुके हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा योगिक प्रैक्टिसेस पे जाते हैं जो हमें कोविड एंड पोस्ट कोविड टाइम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो योगिक प्रैक्टिसेस एक्चुअली करता क्या है, ये बॉडी एंड माइंड में हार्मोनी एस्टेब्लिश करता है और बॉडी एंड माइंड को स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करता है और कई सारे रिसर्चेस भी हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हो, सीओपीडी, क्रोनिक लंग डिजीजेस हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, डायबिटीज हो, स्लीप डिजॉर्डर्स हो या फिर डिप्रेशन, ओबेसिटी हो, ऐसे कई सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कोमॉर्बिडिटी के रूप में देखे जाते हैं कोविड-19 में। तो ये सब के मैनेजमेंट में योगिक प्रैक्टिसेस बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा ये क्या करता है कि म्यूकोजल इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। जो हमारे मेनली वल्नरेबल ग्रुप है, लाइक एल्डरली ग्रुप है, उनमें ये म्यूकोजल इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो हम जो योगिक प्रोसीड्यूर्स मानते हैं, हम जनरली ये सोचते हैं कि कुछ आसन, कुछ प्राणायाम ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है। योगिक प्रोसीड्यूर्स में कई सारे चीजें आते हैं, जैसे कुछ शोधन प्रोसीड्यूर्स आते हैं। उसको कोविड-19 में हम जो जनरली यूज करते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उसमें जल नेति या सूत्र नेति, ये ज्यादा हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो ये क्या है, ये एक नाजल क्लिंजिंग प्रोसीड्यूर है जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। थोड़े से 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डाल लीजिए और उसको एक ये होता है एक ऐसा जल नेति का एक पॉट आता है, उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप ये जल नेति कर सकते हैं। और उसके जल नेति करने के बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ये आपको क्या हेल्प करेगा, ये आपके साइनसेस को क्लीन करेगा, एलर्जी कंडीशन में बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लीन करेगा। ठीक है, और इसको ये 2 प्रकार का है, एक है जल नेति और एक है सूत्र नेति। तो जल नेति जो है उसका एक जल नेति का पॉट आता है, ये चीज आप इजीली घर पे कर सकते हो। सूत्र नेति थोड़ा सा आपके लोगों के लिए टफ रहेगा, बिना प्रैक्टिशनर के कोई एडवाइस के बगैर इसको करिएगा मत। पर जो जल नेति है वो आप इजीली कर सकते हैं। आप उसके लिए एक जल नेति का पॉट आता है, वो ले लीजिए, 1 ग्लास पानी में 1 चुटकी भर नमक डाल दीजिए और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब नाप लीजिए अपने स्किन पे डाल के। फिर आप उसको थोड़ा सा बेंड होके, देखिए जैसे दिखाया गया है पिक्चर में, थोड़ा सा आगे बेंड होके मुंह खुला रखिए और एक नोस्ट्रिल में पानी डालते जाइए, दूसरे नोस्ट्रिल से वो निकलता जाएगा। ये है जल नेति प्रोसीजर। ऐसे ही सेम रिपीट करिए दोनों नोस्ट्रिल्स में, तो इससे आपका नाजल क्लियरिंग हो जाता है। ये कोविड-19 केसेस में बहुत हेल्पफुल है प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा कपालभाति, जिसको हम नॉर्मली सोचते हैं कि एक प्राणायाम है, पर ये नहीं है। कपालभाति भी इस कोविड-19 के टाइम बहुत बेनिफिशियल है। पर जो लोग हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर है या कार्डियक प्रॉब्लम्स है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रॉब्लम है या फिर स्लीप डिस्क प्रॉब्लम है, वो पेशेंट इसको ना करें। ये सुबह सुबह करना, ज्यादा एम्प्टी स्टमक में करना ज्यादा अच्छा रहता है। और ये क्या करता है कि आपके पल्मोनरी फंक्शन को बढ़ाता है, अच्छा करता है, और ये सिक्रेशन को कम करता है, जिससे आपका क्या होता है, जो कफ जमा होके आपको खांसी या जो रिफ्लेक्स आते हैं खांसी के, वो ये कम करता है। ये रहा आपके कपालभाति के।
आप लोग में से ज्यादातर लोग ये करते भी होंगे घर पे, और सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो योगिक प्रैक्टिसेस में मेनली हम लोग करते हैं और देखते हैं यूट्यूब या टीवी पे ये बताया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी गाइडलाइन आता है कि ये सब क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये सब लोग तो आप करते ही हैं, तो क्या है, क्या इजीली आप बिना कुछ बाधा के घर पे कर सकते हैं। तो कोई भी योगिक प्रैक्टिसेस या आसन करने से पहले पहले आपको बॉडी को रिलैक्स करना होता है, जिसके लिए आपको जॉइंट मूवमेंट्स करना पड़ता है। जॉइंट मूवमेंट्स में जैसे आपको नेक मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन, ट्रंक मूवमेंट, नी मूवमेंट, एंकल रोटेशन, ये सब करना होता है। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी का जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो जाता है, उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है। और आगे जाके इसको आप जब रिलैक्स हो जाते हो तो आप आगे के आसन करने के लिए वो आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप आसन में, स्टैंडिंग आसन में आप क्या क्या कर सकते हैं इजीली जो घर पे, तो आप ताड़ासन कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। ताड़ासन आप पिक्चर में देख सकते हैं, ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, हस्त पादासन, त्रिकोणासन, ये सब आप इजीली घर पे स्टैंडिंग आसन कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर में क्या क्या आसन कर सकते हैं आप? शशांकासन, मंडूकासन, ये बहुत फायदेमंद है ये। और वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मार्जार्यासन। और प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आपका आता है मकरासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन, पवन मुक्तासन, और एंड में आप शवासन कर लीजिए। इससे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा? एक तो ये आसन आपके बॉडी और माइंड को स्टेबलाइज करेंगे, आपका बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाएगा कोविड-19 से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, या आप जो ये एक्सरसाइज करते हैं इस वक्त, ये योग करने के टाइम आपका चेस्ट एक्सपांशन होता है। इससे क्या होगा, आपका कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन वो बेहतर होगा। और ये आगे क्या करता है ना, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। तो इसमें भी कोई कंट्राइंडिकेशंस है। अगर आपको कोई एब्डोमिनल हर्निया है, कार्डियक डिसऑर्डर है, या आप हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा रहता है, या आपको कोई अल्सर है, स्टमक अल्सर हो गया, कोई अल्सर है, या फिर आपको रिसेंटली कोई सर्जरी हुआ हो, या आप वर्टिगो के पेशेंट हैं उसके लिए दवाई लेते हैं, तो ये सब और अदर जो कंडीशंस हैं, तो ये सब कंडीशन में आप ये सब ना करें, योगासन ना करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर योगा एक्सपर्ट से आप एडवाइस लेके तभी जाके करें। आप जबरदस्ती एक ही दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। धीरे 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 आप इसको आदत में डालिए, प्रैक्टिस में डालिए। आप एक साथ ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो वो अगले दिन आप उठ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आराम से आसन, जितने हल्के फुल्के आसन है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्राणायाम है ये मेनली बेनिफिशियल है कोविड-19 के कंडीशन में, तो इसको तो आप हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप लोग, ज्यादातर लोग इसको आप घर पे करते हैं, टीवी हो या यूट्यूब हो, कहीं से भी देख के आप इस चीज को करते हैं। तो ये आप सही तरीके से करिए। अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम या उज्जाई प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम कोविड-19 केसेस में प्रिवेंशन के लिए बहुत फायदेमंद है। ये क्या करता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो आपका भागल सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करता है, और ये क्या करता है, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है। और जैसे अभी ये कोविड-19 के कंडीशन में आप लोग ज्यादातर देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं या खुद फेस किए होंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो इस केस में प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है। उज्जाई क्या करता है, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को बॉडी में बढ़ाता है। वैसे भ्रामरी प्राणायाम है, वो भी क्या करता है, वो नाजल नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव करता है टू द सिलियरी एपिथेलियम। आपके लंग्स को वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, और इसका एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन भी है, जिसके वजह से आपका जो न्यूमोनिया या कोई इंफ्लामेटरी कंडीशन आपका होता है उसमें ये फायदेमंद होता है। और ये भी वही करता है, चेस्ट एक्सपांशन होता है, इसलिए ये कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन को अच्छा करता है। उसके अलावा ध्यान,
ये आप सारे आसन कर लिए, उसके बाद ध्यान भी करना जरूरी है। इसके आप ध्यान कैसे करें? एक अच्छे अंधेरे हल्की लाइट वाली स्थान में आप बैठ जाइए, शांत स्थान में बैठ जाइए, और आपका मन में जो आ रहा है, लाइक ओम हो या कोई भी स्पिरिचुअल वर्ड हो, जिस भगवान को आप मानते हो या पूजते हो, उनका नाम लेके आप उन्हीं को चैंटिंग करते रहिए। या फिर आपसे उतना भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, खुद के ब्रीदिंग पैटर्न पे अपना सारा कंसंट्रेशन डाल दीजिए। और इसको आप जितनी देर हो सकता है धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस का टाइमिंग बढ़ाते हुए इसको ज्यादा देर तक आप कर सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा? पहले तो ये आपका एंजाइटी एंड स्ट्रेस कम करेगा, जो इस कोविड-19 के टाइम में सबसे जरूरी है। हम सब लोग ये डर जाते हैं सोच के, अरे कोविड हो गया क्या करेंगे। तो ये जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, और ये माइंड और बॉडी को स्टेबल करता है, काम करता है। फिर ये आपके सारे जो एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करके आपको इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। ठीक है, और प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, गुड स्लीप, ये सब के बारे में सर और मैम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये सब योगिक प्रैक्टिसेस था जो मेडिकेशन के साथ साथ आप ये सब भी प्रैक्टिस करिए, जिससे कोविड-19 के सिचुएशन को आप अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ओवरकम कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिए योग का, और आप अवेयरनेस अपने पड़ोसी या अपने परिवार में ये अवेयरनेस दे सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही क्रिस्प एंड इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया, स्पेशली जो आपने योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया डेली, जो इजीली घर में किया जा सकता है। और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी आपने आसन अभी नोट किए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता है, आप यूट्यूब पे या गूगल पे जैसा भी आप यूज करते हैं सभी लोग, क्योंकि आप इस मीटिंग में हैं तो आप सभी यूज करना जानते हैं, आप वहां पर नाम डालकर सर्च कीजिए, आपको जो है उन्हें करने के लिए इजीली धीरे धीरे प्रॉपर विधि आपको पता चल जाएगी। तो मैडम ने बहुत अच्छे से प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में और विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आपको बताया, और साथ में एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड भी चीजें बताई। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजयश्री। इट वाज अगेन अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। आई होप कि आप सभी को जो अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आई नो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, फिर भी आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो आई होप आप सभी कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जा रहे हैं, ऐसा जो खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो एंड में, जस्ट टू एंड दिस प्रोग्राम, आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक प्रवासी उड़िया स्नेह मिलन एंड श्री आनंदम आयुर्वेद, जिन्होंने इस वेबिनार के बारे में सोचा और इसे कंडक्ट कराया। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने जो भी अभी तक ज्वाइन किया है, चाहे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या कॉमन पीपल हैं, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ है दैट कैन हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी एंड टू स्प्रेड हेल्थ, जो कि आयुर्वेद का मोटो है। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स का, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट एंड पैनलिस्ट जो हमारे साथ थे, डॉक्टर सौरभ, वैद्य संगमित्रा, वैद्य मानस रंजन होता सर, देवस्मिता मैडम, डॉक्टर विजयश्री, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा थैंक्स जो मैं कहना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने ज्वाइन किया एंड यू हैव बीन विद अस फॉर लास्ट 3 आवर्स। थैंक यू सो मच। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचे जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकें, एंड आई होप कि वो हो पाया। एंड आप ये जो भी आहार रिलेटेड चीजें बताई हैं, योग और प्राणायाम रिलेटेड चीजें बताई हैं, इन सबको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने नोट किया है ये सब चीजें, ताकि आप इसे शेयर कर सकें और यूज कर सकें। बाकी डिस्कशन का पार्ट समय की कमी की वजह से हम आज स्किप करते हैं, and if the response from your side is good, we can definitely plan another session for your questions and queries. हम एक और सेशन प्लान कर सकते हैं जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या अगर आप जो आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं चीजें, उनमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप उनको नोट करके रखिए, एंड वी कैन कंडक्ट अनदर वेबिनार जस्ट फॉर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। So thank you so much for being with us, and होप कि नेक्स्ट टाइम हमारे नेक्स्ट ऐसे वेबिनार में भी आप सब हमारे साथ रहेंगे। सो टिल देन, स्टे हेल्दी, फॉलो आयुर्वेद एंड स्प्रेड हेल्थ।